Welcome to all. In this video, we are going to know about complete roadmap for beginners to master agentic AI. So, अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हो agentic AI और AI में, so this is the right place for you. So, in this video, we will cover the complete roadmap for beginner to master, and you can able to understand what things you have to follow to become a AI agentic expert. So let's move on. So now moving forward, agentic AI roadmap. So there are total 8 stages you have to follow, and bonus is also there. So now we will cover each and every aspect of the roadmap. So first and foremost, you have to build your foundation. So stage one, you have to work on the foundation. Second is you have to work on the toolkit mastery. Third step is you have to like master the generative AI, then you can able to do work with AI. And in step 4 you can able to work with how you can use AI tools, how you can work with AI tools. And step 5 you have very important, you have to learn a prompt engineering, because without prompt you can't master or do the AI work in a proper way. Because if you provide a proper input, if you provide good input, you will get the better output. In step 6 you have to build some real kind of project, so you can like have some practical exposure. Even you are a kid, then you can also try this. And in step 7 you have to learn the more advanced concept of the agentic AI. So we'll cover each and everything in details. And in step 7, AI careers for your for you in, and in step 8 we will cover AI careers for you in future. And so I will also share the bonus part, how to learn step by step. So I am pretty sure if you follow this roadmap, you have a fair idea about like what things you have to do as a agent, as a agentic AI career. So welcome to the stage one. It is a foundation stage. So you have to prepare more. So you have to prepare your mind, and you have to like set up your mind, and you have to figure out a goal to understand what is AI and AI agent, and why agentic AI is such a big deal for a future. So trust me guys, if you mainly focus on AI part, your future will really bright. So you have to more clarity on what is AI, what is artificial intelligence. So basically you have a fair idea about like what is AI. So AI is when computer or machine can think, learn and make decisions just like a human would, sometimes easier or faster. So आपको यहाँ पे AI सीखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा AI कैसे काम करता है, AI होता क्या है. सो बेसिकली अगर हम बात करें तो AI जब कोई मशीन या कंप्यूटर थिंक, सोचने, समझने और डिसीजन लेने की क्षमता विकसित कर लेता है, उसको ही हम AI बोलते हैं. सो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, यू सी लॉट ऑफ एग्जाम्पल देयर, एवरीडे एग्जाम्पल, गूगल मैप सजेस्टिंग द फास्टेस्ट रूट, Netflix recommending what you want to watch, and ChatGPT writing your school essay. So imagine करो you are a robot that can talk, sing, solve प्रॉब्लम्स, दैट इज एआई एक्शन. सो जैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, उसी तरह एआई भी समझ सकता है, गाना गा सकता है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है. सो इन स्टेज वन यू हैव अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट इज एआई. अगर आप ये नहीं समझोगे कि एआई क्या होता है, सो अगर आप नहीं समझोगे, इफ यू हैव नो क्लियरिटी अबाउट व्हाट इज एआई, योर फाउंडेशन विल नेवर बी स्ट्रॉन्ग. सो यू हैव टू मोर फोकस ऑन to understand what is AI and how AI works. So moving forward, so now you have to figure out here like types of AI. Firstly, you have to understand what is AI. In stage 2, you have to figure out types of AI. So there are a lot of types of AI. So understand them like a level in a video game. So जो सबसे पहला लेवल वन या फर्स्ट टाइप का जो AI होता है वो रिएक्टिव AI होता है, जिसमें कि मेमोरी नहीं होती, जस्ट रिएक्ट करता है व्हाट इज इन फ्रंट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कैलकुलेटर लेते हो और आप प्रेस करते हो 2 + 2, सो इट बिकम 4, दैट इज. सो इस तरह रिएक्टिव AI काम करता है. नाउ सेकेंड टाइप का जो AI है, लेवल 2 AI है, दैट इज नैरो AI.
ये समहाउ स्मार्ट होता है, बट एक टास्क एक बार में ही कर सकता है, एक टास्क को एक ही बार करता है, मल्टीटास्किंग नहीं होता है। सो यहाँ पे अगर आप एग्जांपल की बात करोगे, चैट जीपीटी इज अ ग्रेट एट टेक्स्ट बट कैंट ड्राइव अ कार। सो यहाँ पे चैट जीपीटी आपको सजेशंस दे सकता है कि हाउ टू ड्राइव अ कार, बट ही कांट ड्राइव अ कार। सो मोस्ट एआई इज नैरो एआई। So now you will see here the example of narrow AI. So ChatGPT will guide you like how to drive a car, but he can't drive a car for you. You have to drive your car by your own. So third type का जो AI है, that is called journal AI, and it's considered under level 3, still in research, और ये still under research में है. So learn any task a human can do like a human brain. So जैसे ह्यूमन ब्रेन सीखता है, वैसे ये जर्नल एआई भी इसी तरह काम करता है. सो हेयर यू कैन सी वन एग्जांपल, अ रोबोट दैट कैन टीच, कुक, ड्राइव, पेंट एंड राइट जोक्स. तो जिस तरह कोई रोबोट पढ़ा सकता है, खाना बना सकता है, गाड़ी चला सकता है, पेंट कर सकता है, और इवन जोक्स भी राइट कर सकता है, तो जर्नल एआई आपका जर्नल काम के लिए आता है. नाउ जो नेक्स्ट टाइप का एआई, दैट इज नोन एज सुपर एआई, एंड इट इज level 4 sci-fi for now. So smarter than all humans, think like Iron Man, Jarvis और Eldron. Danger if uncontrolled. So जो सुपर एआई है वो समटाइम अगर आउट ऑफ द मूव चला गया, सो आप उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है और बहुत रिस्की होता है. सो स्टेज सेकंड में आपको फेमिलियर होना पड़ेगा टाइप्स ऑफ एआई कितने टाइप के होते हैं. देन यू हैव अ फेयर आइडिया अबाउट लाइक किस टास्क के लिए किस टाइप की एआई का आपको यूज केसेस आना चाहिए, यूज करना आना चाहिए. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, एंड नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर एजेंट इन एआई. सो एजेंट क्या होते हैं? सो अगर हम बेसिकली बात करें, एन एजेंट इज एन एआई दैट कैन सेंस द एनवायरमेंट, जो परसेप्शन प्रिडिक्ट कर सकता है, थिंक एंड प्लान कर सकता है, रीजनिंग कर सकता है, एंड डू थिंग्स टू रीच अ गोल, एक्शन भी लेता है. सो बेसिकली अगर हम बात करें कि एआई एजेंट क्या करता है, तो एआई एजेंट आपका परसेप्शन क्रिएट कर सकता है, सोच सकता है और एक्शन भी ले सकता है. एंड एजेंट डजंट जस्ट आंसर, इट एक्ट लाइक अ डूअर. सो वो काम भी करके देता है. बाकी जो एलएलएम्स होते हैं वो आपको जस्ट आंसर देंगे या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बट एंड ऑफ द डे आपको ही वो करना पड़ता है. बट यहाँ पे जो एआई एजेंट होते हैं वो सोचते हैं, समझते हैं, एक्ट करते हैं और यहाँ पे काम भी करते हैं. Now we can see one more example. You say help me find flight to Dubai under 5,000. Normal AI give you a latest list of websites. So जो नॉर्मल एआई है वो आपको एक आइडियाज देगा, लिस्ट ऑफ वेबसाइट देगा, वहां पे आपको खुद जाके सर्च करना पड़ेगा कि वो कौन सी फ्लाइट है जो अंडर 5,000 है. But जो agentic AI है, what they will do, they will search the flights, compare option automatically, book the best one, email your ticket. That's the power of AI agent. जो AI एजेंट है वो फ्लाइट सर्च करेगा, कंपेयर करेगा ऑप्शन को, और आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है वो पिक करेगा. इवन आपकी टिकट बुक करके आपको कंफर्मेशन ईमेल भी सेंड कर देगा और आपकी टिकट को भी ईमेल कर देगा. So this is the power of AI agent. So this is the next level of AI. So now moving to the next. So now we will understand what is agentic AI. So it's AI plus goal plus memory plus autonomy. So what is simply means agentic AI का यहाँ पे क्या मतलब है? So agentic AI is just like a digital worker. You give it a goal, वो फिगर आउट करेगा और कैसे अचीव करना है वो स्टेप्स भी आपको फिगर आउट करेगा. सो जनरली ये रिमेम्बर करता है, प्लान करता है, लर्न करता है और कोलैबोरेट करके अदर एजेंट से आपको बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करता है. सो हियर वी कैन सी वन एग्जांपल, स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल फॉर किड्स. सो व्हाट नॉर्मली आई डू, they just give you the guidelines, they just give you the suggestions how you can start a YouTube channel for a kid. But the agentic AI, what they do, they properly research the trending topics for you, they just write the script for you, even they create a thumbnail for you and schedule the uploads
as per your need and track the analytics also. So you give the goal, the agent does the job. So whatever goal you provide to the agentic AI, they can remember and they can automate all the things. You don't do nothing. You just watch all the things. So basically, agentic AI do all the things for you automatically. So why it is the future of AI? So because we don't just need AI to talk or answer, we need it to do things. So हमें यहाँ पे ये समझना होगा कि AI का जो नेक्स्ट लेवल AI है वो एजेंटिक AI इसलिए है बिकॉज मोस्टली जो अभी हम AI यूज करते हैं नॉर्मल AI, सो वहाँ पे जस्ट वो हमें गाइड करता है कि एंड ऑफ द डे आपको ही सब करना होता है, बट एजेंटिक एआई का फ्यूचर इसलिए ब्राइट है बिकॉज वो चीजों को ऑटोमेट करता है। सो यहाँ पे फ्यूचर यूज केसेस की अगर हम बात करें बिजनेसेस में, सो एआई एजेंट आपके लिए काम करेगा एज अ सेल्स एजेंट, हायरिंग एजेंट एंड मार्केटिंग एजेंट। यू डोंट नीड टू अ कस्टमर सपोर्ट। और अगर हम बात करें एजुकेशन की तो पर्सनल एआई ट्यूटर्स विद मेमोरी, सो ये आपको टीच भी करेगा। हेल्थ केयर सेक्टर में एआई डॉक्टर दैट मॉनिटर एंड ट्रीट, फ्रीलांसिंग, so an entire team of AI assistant you can use. In short, agentic AI equal to doer, not just talkers. So basically अगर आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो सिर्फ फोकस हो करने में, ना कि ज्यादा बात करने में या टाइम वेस्ट करने में, so this is one of the reason that's why the future of agentic AI is super duper bright. Now moving to the next to understand the key concept. So how agentic AI can work. So they can perception and think, reasoning simply means यहाँ पे think करते हैं और टेक एक्शन, एक्शन लेते हैं लूप में। जैसा हमारा ह्यूमन माइंड है, पहले सोचता है फिर समझता है तब एक्शन लेता है, ठीक उसी तरह जो एजेंटिक एआई है वो अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या चीज है, व्हाट हैपनिंग इज देयर, रीड द टास्क को रीड करते हैं एंड उसके बाद वो प्लान बनाते हैं कि ये जो ऑब्जेक्टिव है उसको कैसे अचीव करना है एंड द लास्ट ऑप्शन इज एक्ट, कैसे उस चीज को करना है, सर्च करना है, राइट करना है, ईमेल करना है, एक्सेट्रा। सो एजेंटिक एआई फॉलो दिस लूप जस्ट लाइक वी डू। So autonomy, what is mean of autonomy here? Work without constant instructions. So it simply means you don't need to guide again and again to the agentic AI and आप माइक्रो मैनेजिंग नहीं करेंगे कि बार बार उसको बता रहे, ऐसा नहीं कर रहे। बिकॉज जो एजेंटिक एआई है दे डू ऑल द थिंग्स ऑटोमेटिकली वंस दे अंडरस्टैंड द whole scenario. So like a self-driving car, you just say go to mall and it drives. You don't need to run your brain or guide anything else. So basically goal oriented behavior होता है। So agent know its mission and complete it in steps. So आपको just command देना है and your work will done. You don't need to worry about anything else. So यहाँ पे की कॉन्सेप्ट आपको अंडरस्टैंडिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, देन यू कैन एबल टू understand how the agentic AI really works, what is the behavior of agentic AI. Now moving to the next slide. So key concept में next term है memory. सो जो एजेंटिक एआई है वो रिमेम्बर करते हैं डेटा, पास्ट जो चार्ट होते हैं, टास्क होते हैं और डिसीजन, जो भी पास्ट डेटा होता है उससे ट्रेन होते हैं एंड कैन इवन स्टोर योर प्रेफरेंसेस लाइक आई लाइक शॉर्ट वीडियो और आई लाइक लॉन्ग वीडियो। सो एजेंटिक एआई की जो मेमोरी होती है वो अमेजिंग होती है। सो फर्स्टली वो प्लान करते हैं। सो आपको यहाँ पे समझना होगा एजेंटिक एआई काम कैसे करता है। सो प्लान करते हैं, ब्रेक डाउन द गोल इनटू स्मॉलर टास्क लाइक ए स्टूडेंट प्लानिंग फॉर द एग्जाम। अगर आप अपने प्रिपरेशन कर रहे हो एग्जाम की, सो यू हैव टू क्रिएट अ प्लान, स्टडी, रिवाइज, प्रैक्टिस, स्लीपी आवर। सेम उसी तरह जो एजेंटिक एआई है वो भी यही काम करते हैं और अपने जो भी उनके प्लान है, गोल्स हैं, उनको ब्रेक डाउन करते हैं और उसके बाद लर्न करते हैं। सब एजेंट इंप्रूव ओवर टाइम, दे लर्न फ्रॉम देयर फेलियर्स। सो जैसे ह्यूमन भी लर्न करते हैं अपने फेलियर से, ठीक एजेंटिक एआई भी समटाइम्स मिस्टेक करते हैं बट दे विल लर्न एंड इम्प्रूव ओवर टाइम।
So now moving to the next, now you have to like clarity about what is LLM and LLM powered agent. So LLM क्या होते हैं, तो बेसिकली जो हम आजकल जो यूज कर रहे हैं चैट जीपीटी, ऑटो जीपीटी या और भी एआई टूल्स, दे आर जनरली द एग्जांपल ऑफ एलएलएम्स. सो एलएलएम जनरली क्या होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है. So LLM like ChatGPT, Cloud, Gemini give brain to the agent. When you combine GPT plus memory plus tools, so आपका agentic AI बनता है. सो अगर यहाँ पे हम बात करें एग्जाम्पल टूल्स की, तो चैट जीपीटी प्लस प्लगइन्स इक्वल टू स्मार्टर असिस्टेंट. सो अगर आपने चैट जीपीटी प्रो प्लान यूज किया होगा, सो वहां पे बहुत सारे जीपीटीज हैं, लाइक पीडीएफ जीपीटी, लाइक इंटरव्यू जीपीटी, ऑटो जीपीटी. सो ऑटो जीपीटी इज एग्जांपल सेल्फ एक्टिंग एजेंट है. अगर आप पीडीएफ जीपीटी की यूज करते हो, तो आप you can easily edit the PDF, you can easily analyze the whole content of the PDF. So you can use case the GPT. So Divine AI एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इंजीनियर के लिए बेस्ट है. सो यहाँ पे Divine AI वन ऑफ द एग्जांपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए वर्क लाइक ए एजेंट. सो देयर आर लॉट ऑफ टूल इन द मार्केट. सो अगर ऑटो जीपीटी एक टूल है, सो वो ऑटोमेटिक डिसीजंस आपको हेल्प करता है, स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है. लिंक आप ट्राई कर सकते हो autogpt.net. agent gpt, create your own custom agent if you really want to do practice about how to create a agent. So just simply check this link, agentgpt.reworked.ai. एंड द लास्ट डेविन एआई. सो यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अगर करना है, सो आप यहाँ पे वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो विदाउट एनी इशू. सो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए कि आपको एलएलएम के साथ कैसे वर्कआउट करना है, जिससे कि आपका जो एजेंटिक एआई है वो प्रॉपरली वर्क कर सके. और आपको यहाँ पे समझना है कि कैसे एजेंटिक एआई काम करता है, what are the main components and how it collaborate with LLMs. सो दिस इज द रिवीजन टेबल, हियर यू गो. सो यहाँ पे एआई क्या होता है, तो स्मार्ट कंप्यूटर ब्रेन होता है. एग्जाम्पल हो गया चैट जीपीटी, एलेक्सा. एजेंट क्या होता है, गोल डूइंग एआई. सो आपने कोई गोल दिया है और वो उस गोल को कर देगा. सो यहाँ पे एग्जाम्पल है ऑटो जीपीटी, एजेंटिक एआई, फुल डूअर एआई होता है. आप उसको जस्ट गोल दे दो एंड दे कैन एग्जीक्यूट द प्लान, एक्ट, लर्न and your work will done. Reactive AI only react just like a calculator. Narrow AI क्या होता है कि एक टाइम पे एक ही टास्क कर सकता है, मल्टीटास्किंग नहीं होता है यहाँ पे. सो जर्नल एआई ऑल स्किल्स एंड ह्यूमन लाइक सोचता है, बट यहाँ पे वो आपको गाइड कर सकता है, बट वो एक्ट नहीं कर सकता है. ठीक है. सुपर एआई होता है स्मार्टर देन ह्यूमन, साई-फाई ओनली. सो अगर आपको स्मार्ट टास्क कराना है या आपको लाइक कॉम्प्लेक्स काम कराना है, तो यू कैन यूज अ सुपर एआई. So this is the revision table. So you have to learn lot of tools, lot of things if you really want to make a career as a agentic AI expert or a pro. So these are the basics. So now moving to the next. So visual breakdown. So यहाँ पे जो agentic AI है, आपको समझना होगा कि visual breakdown कैसे होता है. So firstly you give a command, AI input neurons, hidden layers thinking, output neurons, final result. सो यहाँ पे लेयर्स के फॉर्म में काम करता है जो भी एआई एजेंट है या जो एआई है. सो यहाँ पे ईच लेयर एड मोर अंडरस्टैंडिंग लाइक अ ब्रेन थिंकिंग स्टेप बाय स्टेप. सो जितनी ज्यादा लेयर होंगी उतनी ज्यादा जो कैपेबिलिटी होगी एआई की काम करने की और जो स्मार्ट रिजल्ट देने की वो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है. सो यहाँ पे मूविंग टू द नेक्स्ट. अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि ये कैसे काम करता है. दिस इज द वन ऑफ द केस स्टडी. सो लेट सपोज हाउ कैन अ कार सी रेड लाइट और अ पेडेस्ट्रियन. सो यहाँ पे एक कोई कार है, वो रेड लाइट और जो जहाँ पे रुकना होता है सिग्नल के आगे, सो वहां पे कैसे अंडरस्टैंड करती है. सो यहाँ पे जो न्यूरल नेटवर्क है वो हेल्प करता है. सो इनपुट लेयर गेट द कैमरा इमेज, रॉ पिक्सल, and these are the hidden layer figure out red color stop signal, person shape pedestrian, and white lines is a lane. So output layer आप
को निकल के आएगी स्टॉप द कार। So how the agentic AI work? It work in the hidden layers. So firstly, the AI agent learn and understand red color means stop the signal. Person say pedestrian. So if he analyze that some figure or a person is out there, so he get idea about like these are the pedestrian and white lines equal to lane. So जो output आया that simply means stop the car. So outcome क्या है? Car brakes automatically thanks to the neural network that act like eye and brain of AI. सो आई होप आप क्लियर हो गए। सो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि एआई एजेंट अगर मान लो सेल्फ ड्राइविंग कार में काम करता है तो कैसे करता है। मान लो आपको कोई सिग्नल पे रोकना है या रेड सिग्नल पे रोकना है तो कैसे काम करता है। तो यहाँ पे जो न्यूरल नेटवर्क है वो हेल्प करते हैं। तो न्यूरल नेटवर्क बेसिकली आइज और ब्रेन की तरह काम करते हैं किसी भी एआई एजेंट में अगर इस टाइप का एजेंट हो। सो अगर कार में हो या सेल्फ ड्राइविंग में हो। सो रेड कलर का सिंपली मतलब है स्टॉप सिग्नल है। पर्सन सेम अगर वो विजुलाइज कर रहे हैं या एनालाइज कर रहे हैं दैट सिंपली मीन्स पेडेस्टेरियन वहां पे है। और व्हाइट लाइन सिंपली मीन्स लेन है और वहां पे स्टॉप करना है कार को। सो दिस इज हाउ the self-driving car and AI agent work and stop the car automatically. So now moving to the next, another analogy, whisper chain game. So remember that game where you whisper a sentence into your friend ear and it goes through 10 people. So आपने बचपन में एक गेम खेला होगा कि अपने दोस्त को कान में कुछ बताना है और वो अपने दोस्त को बताएगा, वो अपने बताएगा और आगे इस तरह 10 पीपल को बताएगा। अगर लेट सपोज कोई पर्सन बोलता है कि आई वांट अ चॉकलेट, बाय द टाइम इट रीचेस द लास्ट पर्सन दे से आई वांट अ चॉकलेट मिल्क शेक। Just like that, information travel neuron by neuron, changing slightly at each step until a smart decision is made. Types of neural networks advanced peak. So you have to figure out how neural networks work and you have to learn what is CNN, what is RNN, what is LSTM, what is transformers, and what are their use cases. So CNN basically is the convolutional neural है जो basically recognize करता है images में best है। RNN है recurrent neural जो sequencing टेक्स्ट और स्पीच में काम करता है, समझने में हेल्प करता है। एंड LSTM लॉन्ग शॉर्ट टर्म लॉन्ग टेक्स्ट म्यूजिक लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, डिटेक्ट करता है। एंड ट्रांसफॉर्मर्स जिसको हम जीटीपी ब्रेन भी बोलते हैं। एंड एवरीथिंग ही कैन एनालाइज एनीथिंग एंड एवरीथिंग। टेक्स्ट हो गया, इमेजेस हो गया एंड वीडियो हो गया। सो यू हैव गेट मोर क्लियरिटी अबाउट लाइक व्हाट इज CNN, हाउ इट वर्क्स, what is RNN, what is what is LSTM, what is transformers, and what are their use cases. So as a beginner, you have to more focus on the neural network because these are the eye and brain of any AI agent if you work with self-driving car. सो यहाँ पे समरी हम देख लेते हैं। न्यूरॉन वन थिंकिंग ब्लॉक है, न्यूरल नेटवर्क है, मैनी न्यूरल वर्किंग टुगेदर। इनपुट लेयर where AI takes your command, hidden layer where thinking happens, output layer where result outcome. So neural networks AI का रियल दिमाग होते हैं। जितना ज्यादा न्यूरॉन्स और लेयर होंगे उतना ज्यादा स्मार्ट डिसीजन होगा, उतना ज्यादा स्मार्ट डिसीजन होगा। So this is how neural network works. This is AI works. So step 3 में आपको यहाँ पे समझना है what is generative AI. अभी स्टेप 2 में हमने समझा था AI क्या होता है, टाइप्स ऑफ AI क्या होता है, AI एजेंट क्या होते हैं, एजेंटिक AI क्या होता है। स्टेप 3 में आपको बिल्ड करना है, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है कि जनरेटिव AI क्या होता है। So now we will understand what is generative AI. So generative AI is a type of artificial intelligence that doesn't just analyze or understand, it created new things like text, images, videos, music, voice. So जो generative AI है वो सिर्फ आपको यहाँ पे गाइड नहीं करता है, इंस्ट्रक्शंस नहीं देता, उसमें वो एबिलिटी है कि दे कैन क्रिएट थिंग्स
like text, images, videos, music and so many things. सो यहाँ पे आपके सपोज करो कि आपके पास एक रोबोट है जो कि लिख सकता है, गा सकता है और टहल सकता है। सो इस तरह जनरेटिव एआई काम करता है। सो ये नॉर्मल एआई से अलग है। नॉर्मल एआई में यू ओनली गेट द सजेशन, बट इन जनरेटिव एआई they can guide you, they can give you suggestion, but at the same time they can create something new for you. So how it works? So you give a prompt and a smart sentence or a command. So make a picture of Iron Man eating pani puri in Delhi. So you can create. So Chat GPT or any LLM tool will provide a image prompt and create this type of image. Even you can try Mid Journey or Leonardo AI. So AI understand the meaning behind your words. So the more better you can explain the prompt, the better you will get the output. So AI uses a trained model like a brain to imagine how it would looks or sound. सो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? सो यहाँ पे आउटपुट आएगा अ वेरी यूनिक इमेज, वीडियो, वॉइस और स्टोरी इंस्टेंटली। सो यहाँ पे अगर आप कोई इमेज यहाँ पे कोई भी प्रॉम्प्ट दोगे, सो उस बेसिस को एआई जनरेटिव एआई आपको इमेज बना के देगा। सो दीज आर द पॉपुलर जनरेटिव एआई टूल। सो यहाँ पे आपको समझना होगा देयर आर लॉट ऑफ जनरेटिव एआई टूल, देयर आर लॉट ऑफ टूल इन द मार्केट। सो यहाँ पे आपको समझना होगा कि हर एक टूल हर स्पेसिफिक सेगमेंट के लिए अच्छा है। सम टूल्स, कोई भी एक टूल ऐसा परफेक्ट नहीं है जो हर सेगमेंट के लिए अच्छा है। इफ यू वांट टू क्रिएट अ टेक्स्ट यू कैन यूज चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लाउड। So what it does, they can write blogs, email, stories and script. Images अगर आपको करनी है तो you can use Mid Journey, Dolly AI, Leonardo AI that can create artwork and photos for you. If you want to work with videos, you can use Runway ML, Pika Labs, VO3. There are a lot of tools in the market, so that can help you generate AI video from text. If you want to generate music, you can use Sono.ai, Udio, Muffin. There are a lot of tools. So they what they do, they can compose a song, beats, and background music for you. And if you want to use a text to speech or a voice, so here you can. So if you want to generate like voice, you can use 11 labs, descriptive and text to speech. You can also use the Clipchamp. So they can you can clone your voice, narrate text. So these tools are trained on billion of example from the internet. So they learn how to create like humans. इनका जो ट्रेनिंग है वो बिलियंस ऑफ डेटा पे हो चुका है। So they have a very fair idea about how can generate the things, how can produce the things every time in the new way. Now moving to the next. So these are the fun. Let's see one fun example. Draw Iron Man as a farmer riding a tractor in Punjab. So this prompt you can use. So Mid Journey or any image generation tool understand Iron Man, Marvel superhero, farmer, turban, tractor, Punjab, white field culture. Output a unique image you have never seen before, made just for you in a seconds. So this is how you can create a scene scenario. Now we will understand one more real case study. So problem, artists need to create a lot of movie concept art fast. Solution, use AI tools like Midjourney or Leonardo AI to create 10 to 15 concept variation in a minute and you will get an amazing result. What took 3 to 5 days by hand, done in second by AI, saving time plus cost and giving more creative options. So why is generative AI so powerful? So the some of the reasons why. So now we will understand why is generative AI so powerful. So the first reason is creative, comes up with new original content. Whenever you give the prompt, every time AI will give you some new result. Fast, like if you're using the generative AI, you can save lot of time. You can work within second, and you can save your lot of hours, and you can do any work within second.
and it is affordable. No need to hire a big team. If you have a good knowledge about like prompt, and also you don't need to hire a big team. Versatile. So versatile simply means they can do all the things for you, no matter it is related to text, image, voice, video, all in one. Learn from data. The more you use it, the better outcome you get. So this is the reason the generative AI is powerful. So it is one man army. If you work with AI, you can do all the things in a better way. You can get a result faster than anything else. Now moving to the next. Now we will see real life use cases. So story creator asked ChatGPT, tell me a story about a tiger who want to go to school. So poster, if you want to design a poster, you can use Midjourney and give a prompt, a birthday party poster with balloons and chocolate cake. So Midjourney or Leonardo AI can provide the image. And if you want to generate a boy, you can use Lemon Lab, read my poem in Saruk Khan's voice. Video, if you want to create a video, you can use a Runway ML that can create 10-second video of a drone flying over mountains. So these are some real life use cases you can use with tools, you can practice with tools. So as a beginner, आपको ये समझना होगा कि the more you practice, the better get the result. Now, these are the summaries. So, generative AI क्या होता है? AI that can create new things. Input, you give a prompt. So, जैसा आप इनपुट दोगे वैसा आपको आउटपुट मिलेगा. अगर आपका इनपुट अच्छा होगा तो आपको आउटपुट भी अच्छा मिलेगा. सो टूल्स बहुत सारे हैं. चैट जीपीटी, मिड जर्नी, सुनो, 11 लैब्स. सो डिफरेंट डिफरेंट यूज केसेस के लिए यहाँ पे डिफरेंट क्या है टूल्स हैं. सो फन थिंग क्या है यहाँ पे कि आप क्रिएटर बन सकते हो. जस्ट आपके पास थॉट प्रोसेस होना चाहिए, आइडियाज होने चाहिए, एंड यू डोंट नीड अ वेरी हाई स्किल, जस्ट अ नॉर्मल टेक्स्ट, यू कैन क्रिएट एनीथिंग. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट. सो जो फोर्थ स्टेप है वो आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि आपको कैसे काम करना है विद एआई टूल. बहुत सारे स्टूडेंट या बहुत सारे लोग डरते हैं कि सर आई डोंट हैव नॉलेज अबाउट कोडिंग, कैन आई डू प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कैन आई लर्न जनरेटिव एआई? यस, यू कैन लर्न. सो यहाँ पे आप अगर कोडर बनना चाहते हो, विदाउट कोडिंग सीख के आप यहाँ पे कोडर बन सकते हो विदाउट लर्निंग कोडिंग. नो मैटर आप स्टूडेंट हो, आर्टिस्ट हो या कोई भी हो. सो एआई टूल्स पे कैसे काम करना है ये आपको सीखना पड़ेगा. जनरेटिव एआई कैसे काम करता है, अगर आपको इमेज जनरेट करनी है तो किस टूल का यूज करना है, अगर आपको वीडियो जनरेट करने है तो आपको किस टूल का यूज करना है. एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको यहाँ पे समझना है कि आपको उन एआई टूल्स को कैसे कमांड करना है, कैसे इंस्ट्रक्शंस देने हैं. तो प्रॉम्प्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट आपको बहुत अच्छे से देना आना चाहिए. सो यू हैव टू लर्न prompt engineering. You have to more focus on the prompt. The better input you provide the tools, they will give you the best output. So you just type or say something, AI understand and give you a ready-made result in second. Now moving to the next and tools breakdown. So there are a lot of tools for different use cases. So these are some of the example. अगर आपको कुछ लिखना है, पोयम लिखना है, ऐसे लिखना है, so आप चैट जीपीटी, जेमिनी क्लाउड का यूज कर सकते हो. योर स्मार्ट इंग्लिश टीचर की तरह एक्ट करेगा. अगर आपको आर्ट वर्क या इमेजेस क्रिएट करनी है तो आप मिड जर्नी, डॉली एआई, लिनार्डो एआई का यूज कर सकते हो. मैजिक पेंट की तरह ये काम करता है. अगर आपको वीडियो बनाने टेक्स्ट से, सो यू कैन यूज रनवे, एमएलपी का लैब्स, केवर्थ, Veo 3. So it works like camera and video editor. अगर आपको म्यूजिक जनरेट करना है, so सुनो AI, Udio, SoundDraw, they think like a AI DJ composer. And अगर आपको वॉइस पे काम करना है, क्लोन करना है, तो Lemon Labs, Descript, play.ht, वॉइस एक्टर की तरह थिंक करते हैं and they will provide you the output. Now moving to the next and we will see one more example. You want to make a funny 30-second video about mangoes. So write a poem in a chat GPT. So अगर आप ये prompt copy करेंगे and paste करेंगे, chat GPT will provide you a funny poem, mango poem.
और अगर आपको डांसिंग मैंगो की इमेज चाहिए विद सन ग्लासेस तो मिड जर्नी विल प्रोवाइड यू दैट। और अगर आपको गाना चाहिए लिरिक्स स्टाइल में चाहिए तो यू कैन यूज सुनो एआई म्यूजिक मैंगो सॉन्ग इन बॉलीवुड स्टाइल। और अगर आपको वॉइस ओवर करना है नरेट करना है पोएम को तो इन अ कार्टून वॉइस यू कैन यूज लेमन लैब्स। और अगर आपको कंबाइन ऑल इन वन करना है सो यू कैन यूज रनवे एमएल। So export AI generated reel. In 30 minutes, you have a viral short video all without camera, mic, and music skills. So how this amazing sounds. Now moving to the next, why these tools matter. You have to good clarity about इन tools का इतना मैटर क्यों है, ये इंपॉर्टेंस क्यों रखते हैं। कुछ फ्री टूल्स हैं, कुछ लो कॉस्ट है। सो मोस्ट हैव अ फ्री वर्जन और अ ट्रायल, नो स्किल्स नीडेड, जस्ट राइट अ स्मार्ट प्रॉम्प्ट। आप जस्ट स्मार्ट प्रॉम्प्ट लिख के बहुत सारा कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, बहुत सारा टाइम बचा सकते हो अगर इन टूल्स का यूज कर सकते हो। आप 5 घंटों का काम 5 मिनटों में कर सकते हो। मेक यू क्रिएटिव, anyone can become artist writer or a creator even having no knowledge prior। Career ready, start freelancing, making content or launching a side hustle. If you really work with AI tools you can earn money as a freelancer। You don't need to be expert to create magic, you just need the right tool and the right prompt। So यहाँ पे आपको समझना होगा अगर आपके पास राइट टूल है और आप उसको सही से इंस्ट्रक्शंस देना सीख गए, राइट प्रॉम्प्ट देना सीख गए, देन द मैजिक विल हैपन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। नाउ स्टेप 5 में आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा फोकस करना है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब प्रॉम्प्ट क्या होता है? सो बेसिकली प्रॉम्प्ट वो इनपुट या इंस्ट्रक्शंस होता है जिसको कोई भी एआई मॉडल समझता है और उसके बिहाफ पे एक्ट करता है, या जो भी आप इंस्ट्रक्शंस देते हो उसको वो आउटपुट में कन्वर्ट करता है। सो इट इज लाइक अ कास्टिंग a spell, you say the right word, AI understand, AI give you exactly what you want। सो प्रॉम्प्ट क्या है? एक स्मार्ट इंस्ट्रक्शंस है जिसको एआई टूल समझ के उस तरह का आउटपुट आपको देता है। सो इमेजिन करो कि आपके पास एक जिनी है और आप उसको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो विशेष के, तो वो आपको प्रॉपर आउटपुट देगा। बट मेक समथिंग गुड। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ बैड प्रॉम्प्ट बिकॉज आपने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया कि आप क्या चाह रहे हो। फॉर वन मोर एग्जाम्पल, आई नीड अ ब्लॉग ऑन डिजिटल मार्केटिंग। सो चैट जीपीटी आपको एक प्रॉपर ब्लॉग लिख के दे देगा बट इट इज नॉट स्पेसिफिक एंड इट इज नॉट एग्जांपल ऑफ गुड प्रॉम्प्ट बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग अपने आप में बहुत ज्यादा वास्ट है। आपको नैरो डाउन करना होगा कि आपको एग्जैक्टली किस टाइप का ब्लॉग चाहिए डिजिटल मार्केटिंग में। सो यहाँ पे अगर आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दोगे सो एआई गेट कंफ्यूज, व्हाट डू यू मीन बाय गुड, अ ब्लॉग, अ पोएम, अ मीम। सो अगर आपको प्रॉपर आउटपुट चाहिए सो यू हैव टू प्रॉपर input। So write a funny 4 line poem about why samosas are better than burgers। Now AI knows exactly what you want, style, topic, length and tone। सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपको प्रॉपर यहाँ पे एग्जैक्टली exactly बताना पड़ेगा, नैरो डाउन करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी एआई को। सो वो अच्छे से समझ सकेगा और आपको बेस्ट आउटपुट वहां पे देगा। अब यहाँ पे आपको समझना होगा टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्टिंग। सो देयर आर लॉट ऑफ टाइप ऑफ प्रॉम्प्टिंग। सो यहाँ पे प्रॉम्प्टिंग के कुछ टाइप्स हैं। सो यहाँ पे जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग होता है, वन शॉट प्रॉम्प्टिंग होता है एंड द लास्ट होता है चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग। सो जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग में एआई यहाँ पे सोचता नहीं है, जस्ट आपने यहाँ पे 2+2 दिया तो वो आपको एग्जाम्पल देगा 4। बट यहाँ पे वन शॉट प्रॉम्प्टिंग में वो एक टास्क को एक ही बार कर सकता है। बट चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग में एआई कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स और आप मल्टीटास्क भी करा सकते हो। सो बेस्ट किस लिए होता है? लॉजिक प्रॉब्लम्स के लिए होता है, रीजनिंग के लिए होता है एंड कोडिंग के लिए होता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे आप समझें रियल लाइफ यूज केसेस। सो अगर आपको ब्लॉग लिखना है तो आपको प्रॉपर यहाँ पे प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा, राइट अ 500 ब्लॉग अबाउट बेनिफिट ऑफ योगा फॉर बिगिनर इन अ फ्रेंडली टोन। सो अगर आपको प्रॉपर आउटपुट चाहिए तो प्रॉपर इनपुट आपको देना पड़ेगा। अगर आपको इमेज क्रिएट करानी है रॉयल एलिफेंट वॉकिंग थ्रू अ फ्यूचरिस्टिक इंडियन सिटी डिजिटल आर्ट स्टाइल,
सो यहाँ पे आपको किस टाइप की इमेज चाहिए, स्टाइल कैसी चाहिए, वो आपको मेंशन करना है। इफ यू रियली वांट टू नीड अ वीडियो स्क्रिप्ट, राइट अ 30-second यूट्यूब स्क्रिप्ट इन इंग्लिश ऑन एआई टूल फॉर स्टूडेंट। रिज्यूमे अगर आपको क्रिएट करना है तो आप प्रॉपर प्रॉम्प्ट देंगे, क्रिएट अ प्रोफेशनल रिज्यूमे फॉर a 20-year-old BCom student with no experience. Add copy, write a 3 catchy Instagram captions for a mango pickle brand. So this is how you can see and get some idea about like how to write a proper prompt, what are the good example of good prompt, what and how to avoid the bad things. So make sure you provide complete information so the AI agent or AI will understand clearly your instructions, and on the basis of the instruction they will provide you the best. Now moving to the next. सो यहाँ पे प्रॉम्प्ट बोनस फ्रेमवर्क क्या है? सो यहाँ पे अगर आप इस फॉर्मूले को यूज करते हो तो आप एक प्रॉपर बहुत अच्छा इनपुट और प्रॉम्प्ट लिख सकते हो। सो डू दिस प्लस इन स्टाइल प्लस अबाउट, टॉपिक क्या है आपका, प्लस विद टोन कैसी है, इन किस टाइप का फॉर्मेट होना चाहिए। सो लेट्स सी वन एग्जांपल, राइट अ शॉर्ट इंस्टाग्राम कैप्शन in English about chocolate cake in a funny tone with emoji. So यहाँ पे किस तरह का आउटपुट आएगा, here you can see, खा लिया चॉकलेट केक बिना शेयर किए, अब गिल्टी भी हूँ और हैप्पी भी, केक का क्राई। So this is how the beautifully we get the output. So यहाँ पे आप इस फ्रेमवर्क का यूज करके कोई भी प्रॉम्प्ट को जनरेट कर सकते हो। So here you can see the summary. So concept and meaning. Prompt का मतलब क्या होता है? Command you give to AI. Prompt engineering क्या होता है? Art of crafting effective prompts. Zero shot क्या होता है? Ask with no example. Few shot होता है? Give example before asking. And chain of thought होता है? Ask AI to reason step by step. So the better you prompt, the better result you get. जो स्टेप 6 में अब आपको बहुत बेसिक आइडिया हो गया है कि एआई कैसे काम करता है, प्रॉम्प्ट लिखना आ गया, अब आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी होगी, आपको कुछ रियल प्रोजेक्ट क्रिएट करने होंगे। सो यहाँ पे इस स्टेप में आते आते आपका जो गोल होगा वो आपको यहाँ पे समझना है कि आप कुछ भी फनी, यूजफुल, इवन मनी मेकिंग प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाना स्टार्ट करना है, एंड विदाउट नीडिंग टू नो अ कोडिंग और बीइंग अ टेक एक्सपर्ट। एआई आपके लिए सब कर देगा, बट आपको यहाँ पे प्रॉपर राइट टूल और प्रॉपर प्रॉम्प्ट की नॉलेज होनी चाहिए। यू डोंट नीड टू बी इंजीनियर, यू जस्ट नीड आइडियाज, एआई टूल एंड स्मार्ट प्रॉम्प्ट। सो यहाँ पे आपको इस स्टेप पे आते आते यू हैव टू मोर प्रैक्टिस ऑन projects. So because building a small AI project help you to understand tech practically, your confidence will boost and you create a amazing portfolio, impress teacher, friend and even earn online. So in step 6 you have to more focus on building real project. सो किस टाइप के प्रोजेक्ट बना सकते हो? अगर आप स्टूडेंट हो, क्रिएटर हो, बिगिनर हो, सो एआई ब्लॉग राइट कर सकते हो, आप ब्लॉग लिखा सकते हो चैट जीपीटी जेमिनाई से, आप रील्स क्रिएट कर सकते हो रनवे पीका लैब से, आप रिज्यूमे जनरेट कर सकते हो जेमिनी से, चैट जीपीटी से, आप पोस्टर डिजाइन करा सकते हो कैनवा, डॉली एआई, क्रिएट ब्यूटीफुल पोस्टर फॉर स्कूल, आप एआई स्टोरी बुक क्रिएट कर सकते हो चैट जीपीटी एंड मिड जर्नी का यूज करके, और आप एआई वॉइस नरेट कर सकते हो लेवल लैब्स, टर्न योर टेक्स्ट इनटू स्टोरी वॉइस ओवर। मिनी बिजनेस पेज अगर आपको बनाना है तो यू कैन create mini business page with ChatGPT, Canva and Notion, launch your own brand page. So now we will discuss one more example. Let's suppose a 12-year-old kid in India made a full website using ChatGPT, Notions plus Canva called Poemomatic, where user click a button and AI write a custom poem, no coding, just ideas plus prompt. He shared it with friend and teachers and got 1000 visits. So real case study आप try कर सकते हो. So science fair winner with AI. Student use ChatGPT and AI create a project on future farming robots. सो आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखना आना चाहिए। सो रोड फुल रिपोर्ट प्लस डिजाइन रोबोटिक स्केचेस, so won first prize at a school science exhibition. So you can
try and use case this type of study for practice. So you can use these type of case studies and do practice. Now case studies, second Instagram page with AI memes. So 16-year-old created a page called Desi AI memes. So आपने भी देखा होगा there are a lot of AI memes pages on Instagram and they can earning lot of money. So grew to 5K follower in 2 weeks, start earning 3000 per week via meme promotion. So आप भी theme page बना सकते हो इंस्टाग्राम पे मीम पेज बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ एआई विद द हेल्प ऑफ इमेज जनरेटिंग टूल्स एंड यू कैन start creating small project. Now moving to the next, how start your first project, no code needed. So firstly you have to think on what ideas you are working. आपको ideas के ऊपर काम करना होगा कि आपको ब्लॉग बनाना है, वीडियो बनाना है, पोस्टर बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है, फिर आपको एक टूल पे वर्क करना है, टूल्स आपको हैंड ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज लेना है, चैट जीपीटी, कैनवा, डॉली या और भी टूल्स हैं। आप स्मार्ट प्रॉम्प्ट आपको लिखना आना चाहिए, राइट अ फनी पोएम अबाउट समोसास इन द स्टाइल ऑफ शेक्सपियर, create, share, repeat. So these the framework for no coders and those who are a beginner. अगर आप एक beginner हो so आपको 100% इस तरह के प्रोजेक्ट स्मॉल स्मॉल ट्राई करने चाहिए। फर्स्टली आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है, then you can automate things with the help of agentic AI. Challenges and limitation of generative AI. So there are some challenges and limitations. So you want to write anything, ChatGPT write कर लेता है. Make posters. Now step 7, learn advanced concept. अभी तक हमने क्या किया था, बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की थी. नाउ अब आपको एडवांस जाना है स्टेप 7 पे. सो रैग क्या होता है? सो बेसिकली रैग AI read your files, give answers like a memory. So reg is basically work, act like a memory. LoRa क्या होता है? I will explain in the next slide. You teach AI your style, your own model. Vector DB database, AI store memories smartly. So imagine an AI tutor that remember all your test answer and help you improve. सो अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि रैक क्या होता है, लोरा क्या है एंड वेक्टर डेटाबेस क्या है. सो अगर हम बात करें रैक का, तो रैक का फुल फॉर्म होता है रिट्राइवल एग्यूमेंटेड जनरेशन. सो एआई फर्स्ट रिट्राइव इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर डॉक्यूमेंट देन जनरेट एन आंसर बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन. सो जो ट्रेन होने का प्रोसेस है या जो भी आपने इनपुट दिया है उस इंफॉर्मेशन को वो समझता है, फिर उस बिहाफ पे वो क्या देता है, आपको आंसर देता है. सो बेसिकली जो इंफॉर्मेशन गैदर करना है फ्रॉम द इनपुट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट, जो भी उसका पास्ट डेटा है उससे इंफॉर्मेशन गैदर करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिट्राइवल एग्यूमेंटेड जनरेशन. सो थिंक लाइक योर एआई इज ओपन बुक इन एन एग्जाम, इट रीड योर नोट्स देन राइट एंड अ परफेक्ट आंसर. So use cases क्या है? AI chatbot that answer question based on your PDF or website content. Example, what my company refund policy? AI read your file and replies correctly. Real example, Google search plus Gemini use reg to give answer based on live document web. So अगर आपको लाइव कोई क्वेश्चन आंसर सर्च करना है, so you can यूज गूगल सर्च प्लस जेमिनी एंड आप एक ऐसा टूल क्रिएट कर सकते हो जो कि आपको लाइव आंसर करेगा. ऐसा आप एक बॉट रेडी कर सकते हो जो आपको लाइव आंसर करेगा जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उस बेहाफ पे. So now moving to the next and understand what is LoRa. So low rank adaptation. So you fine tune a big AI model using your own data विदाउट चेंजिंग द फुल मॉडल. अगर आपको थोड़ा बहुत चेंज चाहिए, आपको है ना पूरा मॉडल चेंज नहीं करना है, ठीक है, तो थिंक लाइक यू टीच अ जायंट रोबोट टू स्पीक इन योर वॉइस बट ओनली अपडेट इट्स माउथ नॉट द होल बॉडी. सो अगर आपको जो भी मॉडल है, जो भी एआई है उसमें थोड़ा चेंजेस चाहिए, सो आप लोरा का यूज कर सकते हो. तो यूज केसेस क्या है? ट्रेन चैट जीपीटी टू राइट इन योर कंपनीज टोन. Build an AI that replies like your brand or favorite actor. Real example, business uses LoRa to make AI write emails in their brand tone without retraining the whole model.
सो अगर आपको कोई स्पेसिफिक टास्क कराना है अपने अकॉर्डिंग और आप नहीं चाह रहे हो कि पूरा डेटाबेस को रीड करे एनालाइज करे, तो यू जस्ट गिव द प्रॉम्प्ट with little change and they can rewrite or provide the content for you. नाउ हम समझ लेते हैं वेक्टर डीबी। वेक्टर डेटाबेस क्या है? तो स्मार्ट मेमोरी स्टोरेज फॉर एआई वेयर इट रिमेंबर कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग। सो अगर मैं बात करूं, जैसे हमारे पास ब्रेन है और हमारे पास याददाश्त है, ठीक उसी तरह जो वेक्टर डेटाबेस है वो क्या है? स्टोरेज मेमोरी ऑफ एआई होता है। सो थिंक लाइक योर स्टोर आइडियाज नॉट वर्ड लाइक रिमेम्बरिंग डॉग प्लस। अगर आपको डॉग का इमेज आ रहा है तो आपके माइंड में क्या होगा कि ये लॉयल होते हैं, डॉग्स आर लॉयल। सो डॉग्स कैसे होते हैं? लॉयल होते हैं, पेट प्लस वर्क, पालतू होते हैं और भौंकते भी। तो इस तरह का आपका ऑटोमेटिक मेमोरी में आएगा अगर आप डॉग के बारे में सोचते हो। सो यूज केसेस क्या है? AI searches for similar meaning, not exact word. Example searches friendly pet, it find a dog or a puppy. Popular tool, Pinecode, Web, White, Faces, Facebook AI similarity search. So these tools you can use. Real example, Amazon product search uses vector database to recommend similar items you didn't even type. So this is how on the basis of the memory, whatever keyword you type or a thing, so database को analyze करके वो similar type के आपको क्या है ना result provide करता है. So vector DB work like a storage memory of AI. नाउ समराइज कर लेते हैं। तो रैग क्या होता है? रैग होता है रिट्राइवल एग्यूमेंटेड जनरेशन, रीड डॉक्यूमेंट्स प्लस आंसर। इट वर्क्स लाइक ओपन बुक एग्जाम। लोरा क्या है? लो रैंक एडक्शन है। ट्रेन एआई ऑन योर स्टाइल, यू कैन ट्रेन योर एआई विद योर ओन स्टाइल, टीचिंग रोबोट योर वॉइस। वेक्टर डीबी क्या है? वेक्टर डीबी वेक्टर डेटाबेस स्टोर मेमोरी इन मीनिंग्स एंड ब्रेन स्टोरिंग कॉन्सेप्ट नॉट सेंटेंस। तो ये कॉन्सेप्ट और सिमिलर रिजल्ट भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज स्टेप 8, एआई करियर फॉर यू इन अ फ्यूचर। सो अगर आप एआई में काम करना चाहते हो, फ्यूचर बिल्ड करना चाहते हो, सो दिस इज द amazing opportunity for you. So why AI career are booming? By 2030 is AI is expected to create over 100 million jobs globally across industries. And guess what? You don't need to be a coder to join the AI revolution. Instead, you need creativity, prompt skill, understanding of tools, problem solving mindset. Let's explore real high growth AI career that even student, freelancer, creator or working professional can start preparing for today. So from theory to reality, a career in artificial intelligence. So these are the use cases of AI career. So यहाँ पे आप देख पा रहे हो कितने सारे करियर हैं अगर आप एज अ करियर एआई में बनाना चाहते हैं। बहुत सारे प्रोफाइल्स हैं। सो एज अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर आपको क्या करना है? राइट अ स्मार्ट प्रॉम्प्ट टू कंट्रोल एआई, चैट जीपीटी, जेमिनाई, मिड जर्नी। एवरेज अर्निंग आपकी ₹10 लाख से 40 लाख पर एनम हो सकती है। एआई कंटेंट क्रिएटर आप ऐसा वर्क कर सकते हो, मेक ब्लॉग, वीडियोस, रील्स यूजिंग एआई, चैट जीपीटी, रनवे, कैनवा, सोनो का यूज करके, एंड यू कैन इजीली अर्न ₹50,000 to 5 lakh per month as a freelancer. AI trainer or a teacher, teach people or student AI basics, Notion, Canva, YouTube, Google Form, and you can easily charge 5,000 to 1 lakh per workshop. So AI consultant help brand use AI tools to grow, GPT-4, Zapier, Notion AI, and you can easily earn up to 1 lakh to rupees 5 lakh per project. No code AI app builder, build apps using GPT AI tools, Bubble, Glide, VoiceFlow, NN8, and you can easily earn 2 to 10 lakh per month as a startup or a freelancer. Data labeler, starter role, help train AI by tagging content. Label box, scale AI, Tokola. So you can easily earn 10,000 to 50,000 per month as a part-time, or if you are a chatbot trainer, you can improve chatbot replies and logic. GPT, LangChain, Dialogflog.
सो इस तरह के टूल्स यूज करके आप इजीली 30,000 से 1 लाख रुपीज इजीली बना सकते हो। जस्ट आपको चैटबॉट ट्रेन करना आना चाहिए। Now moving to the next career pathway with real example prompt engineering. What you do? Write prompt that can help AI write better blog, generate creative images, or answer customer questions more accurately. करना क्या है? Real example जो Flipkart, Swiggy, and Cred hire prompt engineer to improve their customer services board. Skills needed master prompt engineering framework like zero sort, few sort, chain of thought, role prompting, style plus user prompt design. AI content creator, what you do, use AI tools to script, record, design, voiceover, edit your content, reels, short blog, etc. Tools you can use ChatGPT, Runway, Lemon Labs, Canva, and real example creator are earning 50,000 to 2 lakh per month by making faceless YouTube video using AI only workflows and automate things with AI. So आप AI educator भी as a start कर सकते हो and you can sell your course, you can create your courses and you can organize workshop with AI and your school and corporate. So here you can see one of the example. A 15-year-old student in Delhi taught in a workshop in his school how to use ChatGPT for homework and creativity and earn rupees 5,000 from teachers. You can sell courses, ebooks, webinar, and one-to-one sessions. अगर आप अपना करियर एज अ ऐप डेवलपर बनाना चाहते हैं विदाउट एनी कोडिंग नॉलेज सो यू कैन आल्सो स्टार्ट योर करियर व्हाट यू डू बिल्ड मिनी टूल्स लाइक जीपीटीज एपीआईज लाइक आस्क पीडीएफ एप्स एआई रेसिपी जनरेटर वॉइस टू टेक्स्ट नोट एप्स टूल्स यू कैन यूज बबल ग्लाइड tally.so.plus nn8 open ai apis freelancer charge 20K to 2 lakh per project for building GPT apps for coaches, clinics, and creators. So you can also start your career as a creator, non-code creator, or an app developer. AI strategy consultant. So if you have good experience in AI, so you can start your career as a consultant. You can help startup, school, or SMB adapt AI in sales, HR, customer service, operation, real use cases. A prompt consultant help a real estate agency set up a chatbot that answer flat buying queries and charge rupees 75,000. So this is the journal scenario. You can use this. You can make them real if you want. So you can start your career as a voiceover artist with AI. You can use the Lemon Lab, convert text into professional voiceover, and you can charge you can make profile on Fiverr and you can charge rupees 500 to 5,000 per voiceover. And you can start your YouTube channel, narrate your own videos, client videos, ad videos, and audiobooks. You can create with the help of AI. Now moving to the next, so these are the summary and like industries you can use where AI can use. In e-commerce, you work like as a prompt engineer, chatbot developer. In a media content, you work as a AI editor, script writer, video producer. Education, you work like a AI course designer, AI tutor, HR recruiter, resume ranking, auto interview boards, healthcare. You can work as a AI report generator, Semton board, startup, no code AI app builder, app growth hackers. So आप है ना इतनी सारी इंडस्ट्री में किस किस एज अ प्रोफाइल में वर्क कर सकते हैं हियर यू कैन सी। नाउ हियर यू कैन सी स्किल क्या है और आपको कौन से टूल्स पे काम करना आना चाहिए। प्रॉम्प्ट राइटिंग करना है तो यू हैव टू वर्क ऑन लाइक टूल्स लाइक चैट जीपीटी, प्रॉम्प्ट हीरो। अगर एआई कंटेंट क्रिएट करना है तो यू हैव टू वर्क ऑन कैनवा, रनवे, सुनो। अगर आपको ऑटोमेशन में करियर बनाना है तो यू हैव टू मोर फ्रेंडली वर्क विद N8N, Zapier, एंड सो मैनी ऑटोमेशन टूल्स। अगर आपको एआई टूल रिसर्च बनाना है करना है तो फ्यूचरपीडिया देयर एज एन एआई फॉर दैट। नो कोड ऐप, अगर आप एज अ कोडर एज अ करियर बनाना है तो यू कैन स्टार्ट विद ग्लाइड, टैली डॉट सो, नोशन। स्टोरी टेलिंग करना है तो you can use ChatGPT, Descript, Lemon Labs. So these are the tools you can master. You can have to do practice. So if you want to learn AI skill, you can learn
learn with us. I can guide you.